So let us start from the point where we left. That हमने बोला क्या था that we are trying to solve a simple curve fitting line fitting problem using neural networks as linear unit. तो उस केस के लिए हमने एग्जांपल लिया था that let there be a problem of predicting the heights based upon the weights given to us. Then one of the solution was using a statistical approach. Second one was to solve it using a neural network structure. And then we made a neural network having two layers, one output layer and two input neurons. Output layer containing one neuron and input layer containing two neurons. And then we reached that for solving this problem, the structure of the neuron that was used was a output neuron and two neurons in the input layer. For neuron number 0, you can see neuron number 1, it was having +1 as its input, it was having x or weight as input. This is k0, this is k1, it was generating yk. Got it? तो इसके बाद हमने क्या बात की थी कि हर एक पैटर्न के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज p नंबर ऑफ पैटर्न्स थे 1 2 अप टू p नंबर ऑफ पैटर्न्स थे, हमने एरर रिड्यूस की थी। एरर एक पैटर्न के लिए क्या थी कि जो उसका टारगेट हमें दिया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर पैटर्न p और जो उसकी ऑब्टेन्ड आउटपुट है वो, तो ये क्या था, उसका एक एरर था। एंड टू मेक इट साइन इंडिपेंडेंट वी हैव स्क्वायर्ड इट। Got it? And to neutralize its effect, just divide it up by 2. So the things are going to remain the same. On one side we square the error, the other side we just divided it by 2. इसका स्क्वायर कर दिया और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। The only reason is to make our calculations simple. So this is the reason. So at the end, suppose we iterated upon all the patterns and we found the error, and which is going to be the sum of errors for all the patterns p minus yp and divided by 2. So this is going to be the final equation for our error. ये सबको समझ आ रही है बेटे? Error e is equal to the error for pattern number 1 its square plus error for pattern number 2 its square, error for pattern number 3 its square, and so on. Just square the error, or you can say the difference between the desired output and the actual output generated by the neuron, and then sum them up and divide by 2. So it will be your error signal generated for a given pattern p. One by one we are just keeping on adding, and after that we will sum it up for p is equal to 1 to total number of patterns. यहां तक बेटे समझ आ रहा है? ये e वाली इक्वेशन समझ आ रही है सबको? यस नो बोलो। यस सर। ये जो हमने e निकाला, तो बेटे e बहुत इंपॉर्टेंट है कि e एक्चुअली ड्राइव कैसे हो रहा है। जब तक हमें e समझ नहीं आएगा हम आगे बढ़ने का हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा हमें आगे। तो हमें टोटल p पैटर्न दिए हुए हैं। एक बार फिर मैं p पैटर्न दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि p पैटर्न में है क्या था कि हमें एक x की वैल्यू दी हुई थी, या फिर बोलो कि उसकी हाइट दी हुई थी, और मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा था, उसका वेट प्रेडिक्ट कर रहा था। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा था उसके लिए। तो पैटर्न नंबर 1 के लिए हाइट थी, इसका वेट था, हाइट थी, वेट था, हाइट थी, वेट था, एंड सो ऑन। टोटल 3 नंबर ऑफ पैटर्न्स थे। तो मैंने पैटर्न नंबर 1 दिया, इसको उसकी एरर निकाली, फिर पैटर्न नंबर 2 दिया, उसकी एरर निकाली। जो टीपी है दिस इज आवर एक्चुअल और टारगेट जो इस टेबल में मुझे मेंशन है, और yp जो इस न्यूरल नेटवर्क ने जनरेट किया व्हेन वी इनिशियलाइज दीस वेट्स टू 0.5 and 0.2. The last class also we have just gone through the process when wk0 was equal to 0.1, wk1 was equal to 0.2, then we try to reduce the
actual output generated from this neuron, and that output is termed as your y of t. कि t तो जो एक्चुअली गिवन है ऑब्जर्वेशन में, और yp जो भी न्यूरल नेटवर्क ने जनरेट की है, तो कहता है ये दोनों निकाल के इनका दोनों का डिफरेंस निकालो तो वो एक एरर सिग्नल आएगा फॉर ऑल द डिफरेंस t। अब कहता है प्रॉब्लम को थोड़ा सा और वाइडर व्यू में देखो, उसमें क्या बोलता है कि सपोज मेरे पास इनपुट लेयर में n न्यूरॉन्स हैं, 1 2 3 4 up to n. It is connected with x1 x2 x3 x4 up to xn, और एक मेरे पास आउटपुट लेयर है, लेट इट बी o, और ये आउटपुट जनरेट करके दे रही है मुझे y of o। तो ये वाला जो वेट है इट विल बी इक्वल टू o1, इट विल बी इक्वल टू o2, इट विल बी इक्वल टू o3, it will be equal to O4, and it will be equal to ON. So these are the connecting weights for this neural network. अब suppose कहता है मुझे जो sample space या जो मुझे data set initially दिया हुआ था, वो data set क्या था कि उसने बोला कि मेरे पास values हैं x1 x2 up to xn, ये मेरे पास values already पड़ी हुई है, given है, और इनके corresponding जो मेरा y टारगेट था, मेरा टी था, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसने क्या बोला 1 3 5 अप टू 9, और इसकी वैल्यू थी सपोज 16, 3 6 8 4 इसकी वैल्यू थी 18, 5 9 8 11 इसकी वैल्यू थी 20 एंड सो ऑन। तो ये कितने पैटर्न्स के लिए, पी पैटर्न्स के लिए दिया हुआ था, ये मुझे मेरा डाटा सेट प्रोवाइडेड था। अब कहता है ये जो डाटा सेट लेना है, जितने इसके इनपुट नंबर ऑफ फीचर्स हैं उसके इसमें इनपुट लेयर में न्यूरॉन्स आ जाने हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज मैंने ये वाले वेट्स कुछ इनिशियलाइज कर दिए 0.5 0.2 0.3 एंड समथिंग, और उसके बाद मैंने क्या किया, y जनरेट किया। y किससे जनरेट किया मैंने, एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या मैं मान के चल रहा हूं दैट इट इज अ लीनियर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, means to say that this t is linearly dependent upon x1 x2 and xn. So y can be seen as the theta1 and x1 plus theta2 of x2 and theta n of xn plus c. So linearly this problem can be seen as an equation of this kind, that y will be given by the linear combination of these input features. तो अब हम कर क्या रहे हैं, now we are just trying to simulate this, or we are just trying to find these theta1 theta2 up to theta n and c using a neural network. न्यूरल नेटवर्क भी कौन से वाला, जो लीनियर नेचर का हो, जो हमने कल देखा था। डन। तो हमें कहते हैं ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इनकी हमें वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये जो थीटा ऑफ 1 है, इट इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे ये वाले इसके न्यूरल नेटवर्क के वेट्स हैं। अब कहते हैं इन वेट्स को मैं एक्चुअली ऑप्टिमाइज वे में किस तरीके से फाइंड आउट करूं। दिस इज द प्रॉब्लम इन हैंड व्हिच वी आर गोइंग टू लुक एट। बेटा ये समझ आ गया जो मैंने अभी अभी बोला है कि एक्चुअल में एनालॉजी कहां है, हम इस स्टेज पर इस टाइम खड़े, हम करना क्या चाह रहे हैं, क्लियर है सबके? डन। चलो तो मूव करो। कहता है कि मैंने एक एरर निकाल ली, e इज इक्वल टू, मैंने सभी के सभी पैटर्न्स उसको दिए, सभी के सभी पैटर्न्स को देके सबसे पहले क्या निकला, पैटर्न नंबर 1 आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने आउटपुट y जनरेट की, टारगेट मुझे पता था माइनस किया, प्लस फिर सेकंड वाला पैटर्न उठाया, उसका मुझे आउटपुट मैंने निकाली, टारगेट दिया था, फिर उसका माइनस, और इस तरीके से p पैटर्न्स का इसने क्या किया, एरर निकाली, उसको सम कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये टोटल एरर निकाल दी फॉर अ सिंगल आइटरेशन, फॉर अ सिंगल इपॉक। अब कहता क्या है कि हमें करना क्या है, फाइनली वी वांट टू नो द चेंज इन वेट्स, कि नेक्स्ट वाले आइटरेशन पे जाने के लिए W01 या फिर थीटा1, W02 थीटा2, इनमें कितना चेंज मुझे करना पड़ेगा, ये मुझे निकालना है। तो लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने क्या कहा था कि सपोज मेरे पास 3 डायमेंशंस हैं,
W ऑफ k 0 था, W ऑफ k 1 था और इधर E था। तो उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ किया था, एरर कर्व। उसके बाद बोला था कि सपोज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर अप साइड है, तो मुझे कहाँ जाना है, डाउन साइड जाना है। डन। तो कहते हैं डाउन साइड कितना जाना है और किसके कॉरस्पॉन्डिंग, W k1 डाउन साइड जाने के लिए कितना चेंज होगा, WK0 डाउन साइड जाने के लिए कितना चेंज होगा, हम ये आइडेंटिफाई कर। We need to know the changes which are going to be made for decrease in the error for next iteration. This is our goal. This is our purpose. कि इस काम के लिए हम इसकी डेरिवेशंस को आगे बढ़ाएं। तो कहता है E is equal to this. सपोज कहता है कि मुझे पूरे के पूरे नेटवर्क से कोई एक वेट उठा लो, सपोज W0 हमें वेट्स तो सभी चेंज इन वेट्स तो सभी में फाइंड आउट करना है। W0 में भी, W ऑफ 02 में भी, W ऑफ 01 में भी, W ऑफ 04 मतलब ये सभी के सभी चेंजेस फाइंड आउट करने हैं नेक्स्ट साइड। तो कहते हैं कि सभी को इकट्ठे ना उठा के क्या करो, सिंगल एक वेट को उठाओ। तो मैंने अब किस वेट को उठाया, कहता है कि एक सिंगल वेट लो। वो सिंगल वेट क्या है, कहता है कि सपोज पूरे न्यूरॉन में से एक वेट उठाया, उसका नाम क्या है एक्स आई, उसको एक इनपुट जा रही थी और ये कौन से वेट से कनेक्टेड था, डब्ल्यू ऑफ ओ ऑफ आई से कनेक्टेड था। आई एक न्यूरॉन इनपुट का था और ओ इसका था और ये क्या जनरेट कर रहा था, आउटपुट वाई जनरेट कर रहा था, वाई ऑफ ओ। तो कहता है इस वाले पूरे न्यूरल नेटवर्क में से मैंने खाली इसकी एक ब्रांच उठाई एक्स आई वाली, जो कि वेट डब्ल्यू ऑफ ओ आई से कनेक्टेड था। अब मुझे करना क्या है कि डब्ल्यू ऑफ ओ आई में क्या चेंज निकालना है, चेंज आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए इसको मैं कितना चेंज करूं so that our error gets minimized with the increasing number of iterations। उसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला। बेटा यहां तक की बात समझ आ रही है सबको? माइक ऑन करो एंड रिस्पॉन्ड। यहां तक समझ आ रही है कि हम करना क्या चाह रहे हैं? हाँ जी बच्चों, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. कि ऑल इन ऑल तो मुझे सभी वेट्स के चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, लेकिन सभी के मैं सिंगल वन गो में ही टारगेट करूंगा। उनमें से खाली एक ब्रांच उठाई, उस ब्रांच को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। कहता है कि मुझे डब्ल्यू ऑफ ओ आई में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लूं, तो सेम ऑफ रेट ऑफ चेंज मेरा लगभग सभी के लिए वो जनरलाइज वे में आ रहा है। खाली मुझे उनकी इनपुट चेंज करनी पड़ेगी, वेट चेंज करने। तो कहता है एक ब्रांच को टारगेट करो और उसके लिए चेंज इन वेट्स निकालो। तो कहता है मेरा टारगेट है कि डब्ल्यू ऑफ ओ आई में कितना चेंज हो नेक्स्ट वाली एडिशन। तो कहता है इसके लिए अब आगे काम करना शुरू करो। इसके लिए काम करने के लिए बोलता है कि कहता है कि एरर है। अब एरर को सपोज मैं ये डिलीट, तो कहता है कि सपोज मैंने यही डायग्राम बनाया हुआ डब्ल्यू ऑफ ओ आई और डब्ल्यू ऑफ ओ और जे और इधर मेरी एरर थी। तो कहता है कि अब मेरी एरर सपोज इनिशियली करंटली यहाँ पर है। अब कहता है कि करंटली यहाँ पर है तो मैं इस वाले पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, रेट ऑफ चेंज निकालूंगा। अब कहता है रेट ऑफ चेंज भी किस पर डिपेंड करेगा, ये वाला जो रेट ऑफ चेंज है इसका एक तो इस वाले वेट पर डिपेंड करेगा डब्ल्यू ऑफ ओ जे, और एक किस पर डिपेंड करेगा, डब्ल्यू ऑफ ओ आई पर डिपेंड करेगा। डन। तो कहता है कि इसका रेट ऑफ चेंज वो डायरेक्टली किसके इक्वल है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस कर्व एट दिस पॉइंट। कि इस वाले पॉइंट पर इसका इस लाइन का स्लोप क्या है उस पर डिपेंड। अब कहता है जब मैं स्लोप भी निकालूंगा तो स्लोप भी एक विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ऑफ 0 जे आएगा और एक विद रिस्पेक्ट टू ऑफ आई आएगा। इसका मतलब क्या है, इफ अ वेरिएबल y is dependent upon only variable x, then the slope can be found using dy by dx। ऐसे करते हैं ना बेटे, यस नो?
ये सिंगल वेरिएबल पर y डिपेंडेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेट ऑफ चेंज या स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। अब कहता है प्रॉब्लम क्या है कि अब जो मेरा e या फिर y है, जो e है वो किस पर डिपेंडेंट है, मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, w(o1) पे भी है, w ऑफ o2 पर भी है, w ऑफ on पर भी, सभी पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकालने के लिए मुझे यदि w ऑफ o1 के साथ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू w ऑफ o1, जो कहता है इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो क्या करूंगा, partial derivative of e with respect to w of o2 and so on. Means whenever a variable is dependent upon more than one variables, then we need to consider their partial derivative. तो बिल्कुल सेम केस इसके साथ है। कहता है अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इस e का रेट ऑफ चेंज देख रहा हूँ, वो रेट ऑफ चेंज मुझे किसके रिस्पेक्ट में देखना है, w ऑफ o i के रिस्पेक्ट में देखना है। कहता है जब मुझे o ऑफ i के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज देखना है तो क्या इक्वेशन बनेगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e with respect to tau of w of o i। देखो बेटे यहां तक ये इक्वेशन ठीक है या नहीं, इसको सभी लोग समझ पा रहे हो, यदि नहीं समझ पा रहे हो देन जस्ट स्विच ऑन योर माइक एंड शेयर। ये आ रहा है सबको समझ कि पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिखा है? Yes, sir. चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो बेटे किसी की, और यदि समझ नहीं आ रहा देन आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। चैट बॉक्स अभी भी तुम्हारा खाली पड़ा है, देख सकते हो बेटे आप लोग कुछ यदि समझ नहीं आया है। चलो तो आगे मूव करें। तो कहता है कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव डॉ ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ ओ ऑफ आई निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कहता है कि अप्लाई द चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करने के लिए क्या लिखो, कहता है कि डॉ ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय डॉ ऑफ वाई ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ऑफ ओ आई। ये कौन सा रूल लगा इसमें, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? डॉ ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ वाई ऑफ ओ, डॉ ऑफ वाई ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ डब्ल्यू ओ आई। इसमें बेटे आप मुझे अब बताओ, अभिषेक आप बताओ बेटे मुझे ये y ऑफ o क्या डिनोट कर रहा है, बताओ एक बार। अभिषेक माइक स्विच ऑन करो, माइक ऑन करो। ये y ऑफ o क्या बता रहा है हमें इस वाली इक्वेशन में, आइडिया है? आप बताओ बेटे इबा, y ऑफ o क्या डिनोट कर रहा है? इबा हाँ बेटे y ऑफ o क्या डिनोट कर रहा है? Output. हाँ आउटपुट, बिल्कुल परफेक्ट। y ऑफ o और ये w ऑफ o i क्या डिनोट कर रहा है? वो वाला वेट जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग उसके रेटिंग क्या निकालना चाहते हैं, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं इसका, कि नेक्स्ट वाले इटरेशन में कितना चेंज करें ताकि ऑप्टिमाइज द रिजल्ट्स, ताकि कन्वर्ज हो। चलो ठीक है बेटे। तो कहता है दो टर्म्स में अब ये रिजॉल्व हो गया। कहता है कि डॉ ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ ओ आई इज इक्वल टू डॉ ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ वाई ओ, डॉ ऑफ वाई ओ विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ ओ फाई। तो कहता है ये दो मेरे पार्शियल डेरिवेटिव्स में आ गए, ये एक तरह से ब्रेक हो गया और इनको दोनों को इंडिविजुअली कंसीडर करो। तो पहले वाली टर्म लो, पहले वाली टर्म क्या है, e अपॉन e विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ o। अब e हमें सबको पता है e क्या है, e हमने अभी भी ऊपर निकाला हुआ है, यस नो, अभी निकाला है ना बेटे e, सेम ही तो e है। तो क्या होने वाला है, y ऑफ o और 1 अपॉन 2 समेशन ऑफ p ऑफ o माइनस
पैटर्न छोड़ दो P, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो काम कर ही रहे हैं हम एक पर्टिकुलर पैटर्न P के लिए। तो कहता है कि इस वाली इक्वेशन से ये आ गया और इसका क्या है, स्क्वायर है। डन। तो कहता है इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आने वाला है, कहते हैं डो ऑफ 1/2 को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, डो ऑफ समेशन ऑफ कितना, पी ऑफ ओ माइनस वाई ऑफ ओ का स्क्वायर और क्या आ जाना है, डो ऑफ वाई ऑफ ओ। अब कहता है कि इसको नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगी, समेशन बाहर चली जाएगी तो डायरेक्टली क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी कि डो ऑफ P of O minus Y of O का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू Y of O। तो इसको डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी, बताओ करके, जो मैं इसको Y of O से डिफरेंशिएट करूं क्या आएगा, बताओ, 1/2 into P of O Y of O, इसके बाद क्या, अब इसको डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, माइनस, बोलो 2 भी तो आएगा ना, -1 इसको आ जाएगा। थोड़ा सा बेटे डिफरेंशिएशन का रूल याद कर लो ना, जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, नेक्स्ट में एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, विद पावर n-1, उसके बाद उसकी जो एक्चुअल एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन। अब कहता है जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो t0 की डिफरेंशिएशन 0, उसके बाद -yo की विद रिस्पेक्ट टू yo उसकी डिफरेंशिएशन क्या 1, तो -1। डन। तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके लेके जाओगे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, माइनस P of O माइनस Y of O, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो एट द एंड क्या निकल कर आया कि डो ऑफ E या फिर एरर विद रिस्पेक्ट टू YO इज इक्वल टू माइनस का T of O माइनस Y of O। तो ये निकल कर आई एक पार्ट, तो इसका इस इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 तो ये निकल कर। बेटे इसमें किसी को डाउट हो माइक ऑन कर लो और पूछ प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, y of o को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू w of o i। इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, y of o चाहिएगा। अब वो जो मैंने नेटवर्क बनाया था अभी अभी यहाँ पर जो बना था वो क्या था नेटवर्क, वो क्या था नेटवर्क, उसमें मेरे पास n न्यूरॉन्स थे यहाँ पर ऐसे, n न्यूरॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक मेरे पास आउटपुट न्यूरॉन था, ये सब इससे कनेक्टेड थे। डन। उसके बाद ये y of o जनरेट कर रहा था और ये वाला वेट w of o 0 था, ये w of o 1 था एंड सो ऑन, ये w of o n था, ये वाला वेट। तो कहता है जो y o निकला था ये क्या किसके इक्वल था, तो बेटे दिमाग लगाओ किसके इक्वल था, बताएगा कोई, किसके इक्वल था, समेशन xi मल्टीप्लाइड बाय w ऑफ oi, बेसिक इक्वल था ना, ये वेटेड मल्टीप्लिकेशन होता है, इसकी इनपुट को तो +1 थी, इसको x1 को इससे मल्टीप्लाई करो, x2 को इससे मल्टीप्लाई करो, x3 को इससे एंड उसको सम कर दो, वो किसके इक्वल आता था, y o के इक्वल आता था लीनियर में। डन। Yes, sir. तो क्या करो इसको कि डो ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू w ऑफ oi, अब इसको कहते डिफरेंशिएट करो, समेशन बाहर निकल जाएगी और क्या आ जाएगा इनमें, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इज इक्वल टू xi। बेटे बोला करो, कोई अलग चीज नहीं पढ़ रहे, डिफरेंशिएशन आप पढ़ गए ये सब कुछ, ठीक है बेटे चले आगे। तो क्या हुआ कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो किसके इक्वल आया, x ऑफ i के, ये वाला पार्ट इट बिकम्स x ऑफ i। तो इसके दोनों पार्ट्स आ गए, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये। अब कहता है जो टोटल इक्वेशन बनी इसकी, टोटल इक्वेशन क्या बनी, जो मैं इसको रिप्लेस कर दूं पूरे को तो क्या बन के आएगी इक्वेशन कि जो एरर है उसकी प्रोपेगेशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेट w of oi, it will become equal to minus p of o minus y of o multiplied by xi। ठीक है बेटा यहाँ तक,
Yes, sir. अब कहता है कि ये एक्चुअल में है क्या, कहता है रेट ऑफ चेंज है, इसको फिर से दोबारा ऑब्जर्व करो, ये है क्या, W ऑफ O I था, W ऑफ O J था, और ये मेरी एरर E थी। तो कहता है कि सपोज ये यहां पर था, तो यहां पर मैंने इसको क्या किया, इस वाले E को मैंने डिफरेंशिएट किया, डेल्टा ऑफ E या फिर डॉ ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू O ऑफ I किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहां पर इस एरर का रेट ऑफ चेंज निकाला विद रिस्पेक्ट टू दिस W ऑफ OI, और वो रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ T ऑफ A माइनस Y ऑफ O मल्टीप्लाइड बाय XI। अब एक चीज मैंने कल बताई थी आपको कि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है एंड वी नीड टू ऐड इन द अपोजिट डायरेक्शन, याद है सबके? Yes, sir. कि एरर निकालनी है तो नेक्स्ट वाले स्टेप पे मिनिमाइजेशन के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब जो फाइनल जो रेट इन चेंज या फिर चेंज होगा W ऑफ OI में, W ऑफ OI का जो चेंज होगा वो किसके इक्वल होना है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब प्लस T ऑफ O माइनस Y ऑफ O मल्टीप्लाइड बाय X है। तो बेटा ये मेरा फाइनल चेंज इन वेट है, जो किसमें होना है, उस वाले एक पर्टिकुलर वेट में होना है। डन। तो ऐसा ही चेंज किसके लिए निकलेगा, फर्स्ट वाले वेट के लिए, बायस के लिए निकलेगा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, अप टू nth के लिए। तो सभी वेट्स का चेंज निकलेगा कि नेक्स्ट वाले आइटरेशन में मैं कितना उस वेट को चेंज करूं, ये वाला वेट मेरा निकल कर आए। बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेल्टा ऑफ W की डेरिवेशन, ये ही रियली में आपका बेसिस है पूरे बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क्स का पूरे। तो यही सिंपल सी डेरिवेशन है, इट विल रिमेन द सेम व्हाइल वी ड्राइव द डेरिवेशन फॉर बैक प्रोपेगेशन एल। तो कहता है ये मेरा रेट ऑफ चेंज निकला। अब कहता है जो नेक्स्ट आइटरेशन में जो एक्चुअल W ऑफ I, W ऑफ I होना है वो कितना होना है, इसको नाम दे दो सपोज न्यू, वो किसके इक्वल होना है, W ऑफ OI ओल्ड प्लस प्लस कितना, डेल्टा ऑफ W ऑफ O, डेल्टा ऑफ W ऑफ OI इसके इक्वल होना है। अब डेल्टा ऑफ W ऑफ OI को भी आप क्या कर सकते हो, आगे इसकी सिंपल इसकी फॉर्म में लिख लो, वो किसके इक्वल है, P ऑफ O माइनस Y ऑफ O मल्टीप्लाइड बाय XI। तो इसका मतलब ये है क्या है कि ये वाला जो वेट चेंज होगा वो चेंज क्या होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकलेगी, एक उसकी टारगेट आउटपुट दी होगी, टारगेट में से मैं जो ऑब्जर्व है वो माइनस करूंगा, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले x इनपुट के साथ, जो एक फैक्टर आएगा उसको इस वाले वेट में ऐड, वो मेरा नेक्स्ट साइटेशन के लिए नया एक वेट है। तो ये ओवरऑल में इसका कॉन्सेप्ट है दैट इन केस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, इसको जो बोलते हैं ना, ये जो मैंने निकाला है डेल्टा डॉ ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू डॉ ऑफ W ऑफ OI, इसको ये ग्रेडियंट बोलता है। रेट इन चेंज को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और पूरी अप्रोच वेट्स फाइंड आउट करने की उसको बोलता है ग्रेडियंट डिसेंट या फिर स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। डन। कोई किसी का क्वेश्चन हम पूछ लो बेटे अभी, दिस इज द राइट टाइम टू क्लियर योर डाउट्स, क्योंकि इसके बाद बेटे हम अगले वाले न्यूरल जितने भी पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क उसमें इसकी बात नहीं करेंगे, हम खाली इस डेरिवेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यू सी मोस्ट वेलकम। तो ग्रेडियंट आ गया। अब कहता है इस ग्रेडियंट में अभी इसमें कुछ और भी ऐड करना बाकी है, वो ऐड करना क्या है, कहता है इसी वाले डायग्राम को फिर दोबारा से बनाता हूं एक बार आपके लिए। तो कहता है कि सपोज W ऑफ OI, W ऑफ OJ, और ये कहता है मेरी एरर E। अब कहता है कि E में मैं फिलहाल यहां पर हूं, तो कहता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने, अब इसमें इस वेट की बात कर रहा हूं OI की इसकी सपोज, तो कहता है कि नेक्स्ट आइटरेशन में जब मैं इस इक्वेशन से इस वेट को चेंज करूंगा
तो क्या कहता है कि वो मे बी यहाँ पर आ जाए। नेक्स्ट में क्या कहता है, मे बी वो हल्का हल्का स्टेप लेके यहाँ पे आ जाए, मे बी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो कहता है कि ऑल इन ऑल क्या होता है, ये जो मिनिमम है, ग्लोबल मिनिमम, कहता है उस तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इट मे बी द केस। कहता है कि जिस स्पीड से मेरे वेट चेंज हो रहे हो, दैट रियली will take a lot of iterations, a lot of time to reach to the global minimum. So what he says that we can just speed up this process. We can expedite the process just by considering a new factor that is called as learning rate. Learning rate. Learning rate क्या है? It acts just like a catalyst to speed up the process of convergence, to speed up the process of reaching from a larger error state to the minimal error state. So this is its purpose. कहते हैं इसको learning rate, denote कैसे करते हैं, using theta and its value lie between 0 to 1. तो कहता है ये मेरा लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट है। क्यों एक्शन में आया? क्योंकि मे बी ये प्रोसेस बड़ी स्लो, ठीक है। तो कहता है इसको फास्ट करने के लिए क्या करूं कि इसको जो डेल्टा ऑफ डब्ल्यू आया था, ये वाली जो टर्म आई थी, इसको क्या करो, एक लर्निंग रेट ईटा से मल्टीप्लाई कर, लर्निंग रेट ईटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी प्रोसेस स्पीड अप। तो ये ओवरऑल में लर्निंग रेट का पर्पस है। एंड व्हाइल चूजिंग लर्निंग रेट वी शुड बी वेरी केयरफुल। Suppose we took the learning rate at a higher stage. Suppose we considered 0.9 as our learning rate. तो होगा क्या कि पहले यहाँ पर थी, इसने रेट चेंज निकाला, उसके बाद इसने 0.9 से मल्टीप्लाई किया, तो मे बी इसने एक बड़ा स्टेप ले लिया, यहाँ पर आ गई है। उसके बाद क्या किया, फिर एक बड़ा स्टेप लिया, यहाँ पर आ गई है। उसके बाद फिर एक बड़ा स्टेप लिया, यहाँ पर आ गई है। उसके बाद फिर एक बड़ा स्टेप लिया, यहाँ पर आ गई है। उसके बाद क्या था, फिर इसने एक बड़ा स्टेप लिया, आपकी बार है, यहाँ पर आ गई। अब क्या हुआ, ग्लोबल मिनिमा तक तो पहुंचा नहीं, उसको क्रॉस करके, है ना। तो ग्लोबल मिनिमा तो अभी रीच नहीं हुआ, मींस वी आर नॉट एट द एक्यूरेट कंडीशन। अब दूसरा केस कंसीडर करो, कहता है कि यहाँ पर था, यहीं पर था सपोज, लेकिन कहता है लर्निंग रेट 0.001 अज्यूम किया। तो कहता है पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। कहता है इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसने 1 लाख आइटरेशन लिखा। तो कहता है ये तो बड़ी टाइम की वेस्टेज है, ये तो लर्न नहीं करेगा सिस्टम, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज दैट रियली इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर सिस्टम। तो कहता है लर्निंग रेट को हमें ना इतना कम रखना, ना लर्निंग रेट को इतना ज्यादा रखना है। वी नीड टू बी वेरी careful about this. We have to consider a lot many other parameters while choosing our learning rate. How much computational resources we are having, we need to take care of that also. तो कहता है लर्निंग रेट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए whenever we go for machine learning using neural networks as a basic. Done today. So next 5 minutes for just clearing your doubts regarding, taking your questions regarding. किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं, माइक स्विच ऑन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछने। हाँ जी बच्चों, बोलो बेटे। अभिजीत त्यागी, स्विच ऑन योर माइक। अभिजीत आप बताओ बेटे। अभिजीत है नहीं, अभिजीत तो अनिमेश आप बताओ बेटे, कोई क्वेश्चन कोई डाउट है अनिमेश? अरे तुम माइक ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों डरते हो तुम लोग? अंजलि आप बताओ बेटे। अंजलि यस सर। हाँ, कोई यस। प्रॉब्लम है, कोई डाउट है बेटे इसमें कुछ? नो सर। समझ आ गया? यस सर।
चलो ओके। गौरव संधू आप बताओ बेटे। गौरव संधू, हाँ बेटे, ये समझ आ गया? चलो तो बच्चों आज के लिए बेटा इतना ही करो। ओके, कल हम थोड़ा नॉन लीनियरिटी की तरफ मूव करेंगे। अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क एज लीनियर यूनिट्स, कल पढ़ेंगे एज नॉन लीनियर यूनिट्स। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो बेटे पूछते हैं? इज इट फाइन? सर जो लर्निंग रेट होता है हाँ वो हम बाय अजम्पशन लेते हैं या कोई रूल होता है? बेटे देखो, लर्निंग रेट कंसीडर करने के लिए पहले हमें नॉर्मली तो आजकल हम क्या करते हैं कि जस्ट डू बाय ट्रायल मेथड्स, चूज दिस लर्निंग रेट, चूज दिस लर्निंग रेट, चूज दिस, इस पे वो कितनी एक्यूरेसी रेट कर रहे हैं या कितने जल्दी कन्वर्ज हो। लेकिन इसका लर्निंग रेट का सपोज हम कुछ और पैरामीटर्स डिवाइस करें जो कि बड़े ही डोमेन स्पेसिफिक हो, तो वो रियली हेल्पफुल होगा आपकी एक्यूरेसी के लिए। वरना तो इसको हम मेथड ट्रायल बेस ही रखते हैं ना। ठीक है बेटे? यस सर, ठीक है सर। हाँ, इसको काफी सारी एक्चुअल आपको बताऊं कि कुछ प्रॉब्लम जो पहले न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग से सॉल्व हुई थी, उनको लोगों ने क्या बोला कि नाउ वी आर मेकिंग दिस लर्निंग एज एन एडेप्टिव पैरामीटर, कि उन्होंने लर्निंग रेट के लिए डोमेन स्पेसिफिक फॉर्मलाइजेशन की, कि कुछ एक वेरिएबल्स से कनेक्ट कर दिया उन्होंने न्यूरल इसके लर्निंग रेट को by keeping the value in between 0 and 1। तो उससे क्या हुआ, कुछ एक प्रॉब्लम्स में एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, कुछ एक में नहीं हुई। तो डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकता है, और बाकी नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उसको हिडन वैल्यूज हम उसकी कन्वर्जेंस टाइम नोट करते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि उससे एक्यूरेसी को डिक्रीज नहीं हो। ओके, और बेटे और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो बेटे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, see you tomorrow same time, okay?